My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions on 2D mensuration that have appeared in SRCC GBO examination in previous years. Start करते हैं सेशन. If you're not already subscribed to the channel, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना. That is also by the name Mathological, and you can always message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session is from SRCC GBO examination 2009. The cost of fencing an equilateral triangular park and a square park is the same. If the area of the triangular park is 16 root 3 meter square, the length of the diagonal of the square park क्या होगा? Cost of fencing an equilateral triangular park and square park that is same. So what does that mean? Fencing के लिए हमें perimeter का जरूरत होगा, isn't it so? So perimeter is the required thing. So perimeter of the equilateral triangle and square park must be same. Perimeter of equilateral triangle and perimeter of the square park must be same. So if we can find out one of the values, तो वहां से हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क इज गिवन, दैट इज 16 root 3 meter square, and area of a triangle, equilateral triangle, is root 3 by 4 times side square, root 3 by 4 times a square. Let us say a is the side length of triangular park. So if side length is a, perimeter will be 3a. root 3 by 4 a square is equal to 16 root 3. root 3 से root 3 cancel out हो गया, a square comes out to be 64, and hence a comes out to be equal to 8. So if a is equal to 8, perimeter of triangle will be 8 into 3, 24, which is also equal to perimeter of the square, 4 times of side length. So 4 times of side length is equal to 24. So side length will be equal to 6 for the square. So square का side length 6 हो जाएगा, और क्वेश्चन ने पूछा है diagonal of the square का लेंथ क्या होगा. So if side length is 6, diagonal will be 6 root 2 in a square. साइड लेंथ a है तो हमारा a root 2 होगा diagonal, साइड लेंथ 6 है, 6 root 2 होगा. ऑप्शन C will be the answer. You see? Okay. Next question. 6 poles A, B, C, D, E, and F, each having a height of 30 meters, are fixed perpendicular to the ground in the sequence mentioned above in an arrangement forming a regular hexagon at the points they are touching in the ground, such that the shortest distance between the points of contact with the ground of any two consecutive poles is 8 meters. Question क्या कह रहा है? 6 poles are in total, और height is fixed for them. Height is constant. Height is same for all of them. That is 30 meters. And they are fixed perpendicular to the ground in the sequence in an arrangement forming a regular hexagon. यानी कि सबका जो distance between them है, that is equal. And shortest distance between the points of contact with the ground of any two consecutive poles, that is 8 meters. अभी जो shortest distance given है ना, यही हमारा side length हो जाएगा. So if this is pole A, if this is pole A, this is pole B, this is pole C, this is pole D, pole E, and pole F. And distance between them is 8 meters. Their height is 30 meters. And a shed is to be constructed at the top. जैसा बॉटम में दिख रहा है वैसे शेड जब ऊपर कंस्ट्रक्ट करोगे वो भी वहां के लिए भी वैसा ही दिखेगा, ABCD F. बट शेड हैज टू बी कवरिंग ओनली द रीजन ABCD. हाउ मच कैनवस विल बी रिक्वायर्ड? तो शेड को कवर करना है सिर्फ ABCD रीजन को. तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शेड नीडेड टू बी कवर्ड? ओके, तो ABCD रीजन का हमें एरिया समहाउ फाइंड आउट करना है. दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली. ओके, तो एक तरह हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि हेक्सागन है, में रेगुलर हेक्सागन गिवन है. सो इन एवरी रेगुलर हेक्सागन देयर आर टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. तो उनको देख लो. So this will be ABCD is basically half the hexagon. ठीक है, that is half the hexagon. So in that half the hexagon, I mean A, if this point is O, तो AOB is a equilateral triangle, BOC is a equilateral triangle, COD is also a equilateral triangle. So all these values are 8. तो total area क्या आ जाएगा? That will be 3 times area of one equilateral triangle. So 3 into root 3 by 4 into side square, which is 8 square. So 3 into root 3 by 4 into 64. So 16 into 3, 48 root 3 will be the answer. Option A. Okay, that is the easy approach.
अदरवाइज फिर यहाँ पे हम ABCD में ट्रेपाजॉइड देखते हैं। अगर ये बात क्लिक नहीं करे, जो क्लिक करनी चाहिए हमेशा, ये बार बार हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कहीं पे हेक्सागन दिखे रेगुलर हेक्सागन, दैट ऑलवेज इज फाउंड बाई 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अदरवाइज दिस इज अ ट्रेपाजॉइड, because BC and AD are parallel lines. And BC is equal to 8, AD is equal to 16. But trapezoid देखोगे तो फिर बीच में डिस्टेंस तो चाहिए ना, दिस डिस्टेंस, दिस वर्टिकल हाइट। तो अगेन तुम्हें यूज तो करना ही पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पॉइंट क्या है, बिकॉज दिस विल बी a√3/2, यानी 8√3/2, so this distance will be 4√3, so area will be equal to 1/2 into sum of parallel sides into distance between them, 4√3. So 24/2, that is 12 into 4√3, that is 48√3. Okay. Next question. The number of circular pipes with an inside radius of 0.5 centimeter which will carry the same amount of water as a pipe with an inside radius of 3 centimeters क्या होगा? तो फ्लो यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बात कर रहा है अबाउट द इनसाइड रेडियस ऑफ पाइप्स. सो फर्स्ट केस में वी हैव इनसाइड रेडियस इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. And in second case, the inside radius is 3 centimeter. So how many pipes we need of the first type to have same amount of water as the pipe with inside radius of 3 centimeter? Now, total volume or flow is proportional to area square. क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड को कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे, तो फ्लो हमारा प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होगा. तो इट से n पाइप्स आर नीडेड, सो फ्लो विद वन पाइप विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. एरिया स्क्वायर क्यों लिखा है, एरिया स्क्वायर नहीं, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा फ्लो, ठीक है, और एरिया इज प्रोपोर्शनल रेडियस स्क्वायर. तो फ्लो इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर बिकॉज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इन केस ऑफ अ सर्कुलर पाइप. सो फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. ठीक है, सो n इंटू, अगर फ्लो प्रोपोर्शनल रेडियस स्क्वायर है, या फ्लो बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा सम कांस्टेंट इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली द फ्लो स्पीड, जो कि सेम ही है. ठीक है, सो स्ट्रेट अवे क्या करो, n इंटू आर स्क्वायर विच इज 0.5 स्क्वायर, this will be total flow with n pipes, and that should be equal to total flow by this one pipe which will be equal to 3 square. Okay, actual जो flow होगा that will be flow speed, let us say that is equal to s multiplied by pi r square. ये actual flow होगा, बट हमें तो अल्टीमेटली n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इतना काफी है. n into 0.5 square is equal to 3 square, so n will be equal to 3 square upon 0.5 square, which will be 9 upon 0.25, so 9 into 4, 36 pipes will be needed. Option D will be the answer. Okay. Next question. What is the area of the figure below if ABDC is a rectangle and BDE is an isosceles right triangle? So what will be the area of this figure? बहुत ही simple question कि हमें total area of this figure find out करना है. जबकि ABDC एक rectangle है, rectangle का area आ जाएगा A into B, length into breadth, that is A into B, and area of this triangle will be 1/2 into base into height. Base is B, height is also B, isosceles triangle है, so 1/2 B square, AB plus B square by 2. B को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा B into A plus B/2. Option C will be the answer. Okay. Next question. 3 boys are standing on a circular boundary of a fountain. They are at an equal distance from each other. If the radius of the boundary is 5 meters, the shortest distance between any two boys क्या होगा? 3 boys are standing on a circular boundary of a fountain. Let us form the circle first. And 3 boys standing such that they are at an equal distance from each other. Equidistant है. So these are the 3 boys, B1, B2 and B3. They are equidistant. Distance between them is equal. Distance क्या होगा? Distance will be, shortest distance will always be a line, and these distances must be equal because mentioned है equal है. So clearly this is a
equilateral triangle. B1, B2, B3, this is a equilateral triangle. And radius of the boundary is 5 meters. यानी कि radius हमें given है. और boundary क्या है? Circular boundary है. This is basically circumcircle of this equilateral triangle. This is 5. This is circumradius. एक तरह से circumradius of the triangle formed inside. Circumradius क्या होता है? That is side length divided by √3 and this is equal to 5. तो यहाँ से side length हमें मिल जाएगा. That is equal to 5√3. So distance, shortest distance between any two boys, that is equal to 5√3. Okay. Next, in the figure, there are two rectangles, each of dimensions 8 cm cross 12 cm. Length of CE is equal to 7 cm. So what is the area of the shaded region? Now this is a tricky question. ये क्वेश्चन फंसा सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज कर सकता है. तो देखो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारी हैं जो कि फिक्स्ड हैं, जो नोन है हमें नोन क्या है, वी हैव नोन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स. सेम है 8 cm क्रॉस 12 cm. दैट इज ओनली थिंग दैट वी नो. और बाकी हमें फिगर को यूज करना है. लेंथ ऑफ CE इज इक्वल टू 7 cm. दैट इज एडिशनल थिंग. CE तो मार्क कर देते हैं पहले. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस पॉइंट इज D and this here is E, then F, G and this point here, this is equal to H. We need to find out area of the shaded region. So what will be area of the shaded region? So we can say that area of this shaded region will be equal to this will be equal to area of rectangle ABCD minus, अगर हम एरिया ऑफ द पोर्शन ADEH निकाल लें, एरिया ऑफ ADEH रिमूव कर दें फिर. ठीक है, अगर हम डायरेक्टली निकाल पाए एरिया ऑफ ABCEH तब तो और बेस्ट है. बट क्या निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो AB, वी नो BC, वी नो CE, बट क्या हमें EH पता है, EH पता है. ठीक है, और अदरवाइज इफ वी कनेक्ट दीज लाइंस हियर, so you have no idea of this distance. ये distance क्या होगा? Isn't it so? So that is why we cannot find out area directly. हमें पहले area find out करना पड़ेगा for ADEH कि what is the area of ADEH. अब even ADEH का area find out करना है तो क्या उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें known है. We know that AD is equal to 12 because that is the side length of rectangle. DE is equal to 1. That also we know. But उसके अलावा तो कुछ भी पता नहीं है. हाँ, मतलब AH पता है कि AH is equal to 8. AH is 8. This length here, this is 8. But HE नहीं पता है कि HE की लेंथ क्या होगा. दैट वी हैव नो आइडिया. सो क्या कर सकते हैं, वी नो AD एंड वी नो DE. AD और DE पता है. सो इफ वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन AE, सो AD और DE पता है और दिस इज अ राइट एंगल. सो वी कैन फाइंड आउट AE. Isn't it so? We can find out length AE and then in triangle AHE, this is also right angle triangle. दो ट्रायंगल्स पे हमें फोकस करना है. वन इज ट्रायंगल ADE विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें AD पता है और DE पता है, तो वहां से वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. सेकंड ट्रायंगल होगा हमारा ट्रायंगल AHE विच इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें हमें लेंथ नहीं पता है. अगर हमें बेस लेंथ एंड पर्टिकुलर लेंथ पता होगा तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. बट हमें AH पता है, AH इज 8, बट HE इज नॉट नोन. बट HE कैन बी नोन once we know AE. Once we find out length of AE, we can find out length of HE also. Isn't it so? तो पहले AE का लेंथ फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल ADE. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं है. एरिया इज डायरेक्टली नोन. दैट विल बी इक्वल टू 1/2 into 12 into 1. So that is equal to 6 square units, 6 centimeter square. एरिया तो समझ में आ गया. ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 6, बट AE लेंथ क्या होगा. सो AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So AE square is 145. So AE is equal to square root of 145. And now focus on triangle AHE.
So in triangle AHE, AH square plus HE square is equal to AE square. और AE square है 145, तो AH square हमारा क्या है 8 square, तो 8 square plus HE square is equal to 145. So HE square will be equal to 145 minus 64 which is equal to 81. So HE will be equal to 9. और जैसे ही HE equal to 9 आ गया क्वेश्चन फिनिश हो गया, बिकॉज नाउ वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल AHE ऑल्सो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AHE this is equal to 1 by 2 into 8 into 9. So that is 36 centimeter square. Area of ABCD, that is 12 into 8. 12 into 8 minus area of ADEH, which will be equal to 6 plus 36. So 96 minus 42. 54 centimeter square will be the answer. Okay. Option C will be the answer. 54 centimeter square. क्या ये क्लियर है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. A square and an equilateral triangle have the same perimeter. Let A be the area of the circle circumscribed about the square and B be the area of the circle circumscribed about the triangle. Then ratio A is to B क्या होगा? गिवन है हमें सेम पेरीमीटर है और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. तो क्लियरली यहाँ पे हम वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. नाउ पेरीमीटर इज सेम फॉर अ ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर. ट्रायंगल इज हैविंग स्क्वायर इज हैविंग 4 साइड्स, ट्रायंगल इज हैविंग 3 साइड्स. ठीक है, तो 4 into 3 हम एज्यूम कर लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 12. पेरीमीटर को P भी मान सकते हो, बट ईजी होगा कि पेरीमीटर की कोई ईजी नंबर वैल्यू मान लो. तो 12 मान लिया हमने, बिकॉज स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों का पेरीमीटर इक्वल है. स्क्वायर में 4 साइड्स हो गया, ये ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गया. 4 into 3 12 हमने एज्यूम कर लिया. सो दैट हमारा जो साइड लेंथ है वो हमारा इंटीजर है इन बोथ स्क्वायर एज वेल एज इक्वल ट्रायंगल. ठीक है, सो ए इज द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द स्क्वायर. तो फॉर द स्क्वायर साइड लेंथ क्या आएगा? साइड विल बी इक्वल टू पेरीमीटर 12 है, साइड विल बी इक्वल टू 3. एंड फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड विल बी इक्वल टू 4, 12 by 3. ठीक है, सो सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर is a circle that is circumscribing the square. So for that circle जो डायगोनल है हमारा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, दैट विल बी डायमीटर ऑफ दैट सर्कल. और अगर साइड लेंथ 3 है तो डायगोनल विल बी 3√2. सो रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी इक्वल टू 1.5√2 और 3√2 by 2. सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 3√2 by 2 होल स्क्वायर. ओके, एज फार एज ट्रायंगल इज कंसर्न, ट्रायंगल में एरिया क्या होगा? सर्कम सर्कल है. फॉर ट्रायंगल दैट रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल इज कैपिटल आर इज a अपॉन √3. तो दैट विल बी 4 अपॉन √3. रेडियस एरिया हो जाएगा पाई इंटू 4 अपॉन √3 होल स्क्वायर. हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी 3√2 होल स्क्वायर बाय 2. तो दिस विल बी 3 into 3 square 9, 9 into 2 by 4. So 9 by 2 is to 16 upon 3. मल्टीप्लाई कर दो. तो 9 into 3 27 is to 32. रेशियो आ जाएगा 27 is to 32. ऑर्डर भी हमेशा ध्यान रखना कि पहले हमारा स्क्वायर है बाद में ट्रायंगल है. तो 27 is to 32. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? पेरीमीटर पी मान के भी सॉल्व कर सकते थे. पी मानते तो साइड लेंथ हमारा p/3 आता, फिर p/3 इंटू √2 करते, तो वैसे कहानी करनी पड़ती हमें फिर. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस होता. डिफरेंस इन द सेंस के कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा कॉशियसली करना पड़ता है. वैल्यूज़ अगर इंटीजर में मान लोगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो हमेशा कोशिश करना है ईजी मेथड सही चीज़ों को सॉल्व करें, सो दैट गलतियाँ नहीं हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 concentric circles
have radii in centimeters that are A, B and C, where A is less than B and B is less than C. concentric circles हैं. So यानी कि सेंटर इससे है A, B and then finally C. This is A, this is B and this is C. If A is equal to 8, B is equal to 9 and middle circle bisects the area between the other two circles, then value of C क्या होगा? A is equal to 8, so this is equal to 8, B is equal to 9 और C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C. एंड मिडिल सर्कल बाइसेक्स द एरिया बिटवीन द टू अदर टू सर्कल्स. ठीक है, सो एरिया by the smallest circle, that is pi a square. Area by the largest circle, that is pi c square. And middle circle is bisecting that area. Bisect कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि area that is between circle A and B, this area is same as this area between circle B and circle C. So area between the first and the second circle, that is same as area between the second and third circle. Isn't it so? यही तो मतलब हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल के बीच का एरिया क्या है? दैट इज पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज सेम एज एरिया बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सर्कल, दैट इज पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो टू टाइम्स ऑफ 9 स्क्वायर minus 8 square. So 162 minus 64 and C square comes out to be equal to 98. So C will be equal to the square root of 98, which will be 7 root 2. C is equal to 7 root 2. Option A is the answer. Okay. Clear? या ऐसे भी देख सकते थे कि इफ मिडिल सर्कल इज बाइसेक्टिंग द एरिया बिटवीन द अदर टू सर्कल्स. भाई एक सर्कल इनसाइड में है, एक आउटसाइड में, मिडिल सर्कल हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि द एरिया ऑफ मिडिल सर्कल इज एवरेज ऑफ द अदर टू सर्कल्स. एरिया ऑफ द मिडिल सर्कल इज एवरेज ऑफ अदर टू सर्कल्स. So in that case we can say that pi b square is equal to pi a square plus pi c square divided by 2. So b square is equal to a square plus c square by 2. अब यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो कहानी तो वही आएगी कि अल्टीमेटली 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर एंड हेंस c इज इक्वल टू 7 रूट 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the figure, ABCD is a rectangle and each circle has diameter 4 cm. Length BC is equal to what value? ABCD is a rectangle and each circle has diameter 4 cm. जब भी सर्कल्स टच कर रहे हो हमेशा सेंटर्स को उनके कनेक्ट करना है सो दैट हम फिगर को प्रॉपर्ली समझ पाएं. ठीक है, तो सर्कल्स हमारे यहाँ पे टच कर रहे हैं और हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है लेंथ BC. What is length BC in this case? Okay, so radius diameter 4 cm, radius is equal to 2 cm for each circle. ओके, अब डायरेक्टली देखो हमारा 3 टाइम्स डायमीटर आंसर नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, आंसर उससे लेसर होगा बिकॉज 3 टाइम्स डायमीटर आंसर हमारा तब होता जबकि सर्कल्स हमारे डायरेक्टली इस तरह से टच कर रहे होते, तब तो 3 टाइम्स डायमीटर हमारा आंसर होता. बट ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, सर्कल साइड वेज टच कर रहे हैं और क्योंकि सर्कल साइड वेज टच कर रहे हैं तो हमारा आंसर विल बी लेस देन 12. तो 12 विल नॉट बी द आंसर, लेस देन 12 आंसर होगा. और फिर साथ में ये भी क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि आंसर हमारा लेस देन 12 होगा तो डेफिनेटली ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा बिकॉज ऑप्शन बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 12. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको. वैसे तो ऑप्शंस की शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए शुड बी द आंसर बिकॉज 11.5 तो आंसर नहीं होगा. यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा जब हम सर्कल्स को कनेक्ट करेंगे सेंटर्स को. ओके, सो दिस लेंथ हियर एंड दिस लेंथ हियर, दीज आर इक्वल टू, दिस इज 2 एंड दिस इज 2. ठीक है, नाउ सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स को कनेक्ट करते हैं. तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2.
एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2, टोटल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जहाँ पे कि जिसका लेंथ क्या है, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड. ठीक है. सो फ्रॉम दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल we can find out this length. ठीक है, this length here and this length will be equal to, this is the median of equilateral triangle, तो a root 3 by 2 यानी 4 root 3 by 2 which is equal to 2 root 3. Similarly connect centers of these three circles. और यहाँ भी सेम स्टोरी है, अगेन साइड्स विल बी 4, तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर लेंगे परपेंडिकुलर और मीडियन का लेंथ. So similarly this will also be 2 root 3. बस अब टॉप और बॉटम वाला और ऐड कर दो. दिस लेंथ हियर विल बी 2, दिस इज 2 एंड दिस लेंथ हियर दिस विल आल्सो बी 2. तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगा, 2 root 2 plus 2 root 3 plus 2 root 3 plus 2. So that will be equal to 4 root 3 plus 4. So option A is the answer. Okay. Is this clear? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So this was a beautiful question. Next one. A circular grass plot 4 meter in diameter is cut by a straight path 1 meter wide, one edge of which passes through the center of the plot. So area of the remaining plot क्या होगा? What will be area of the remaining plot? डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कहानी करनी पड़ेगी. एक सेकेंड, इतना गंदा सर्कल भी नहीं बनाना था. So this is our circle with diameter 4 meters and it is cut by a straight path 1 meter wide, one edge of which is passing through center of the plot. This is the edge which is passing through center और फिर 1 मीटर की विड्थ है और रेडियस हमारा है 2 meters बिकॉज डायमीटर है 4 meters. So this is 2, this is 2 and this width here, this is equal to 1. And we need to find out area of the remaining plot apart from the path. So path के अलावा जो बाकी बचा हुआ एरिया है that we have to find out. So this area here that we have to find out total area. तो पॉज करो, ट्राई करो पहले अपने एंड पे कैसे हम सॉल्व करेंगे. हाउ टू फाइंड आउट द एरिया. Radius is 2. So if we connect this point here to this point is O. Let us say this is A and this is B. OA and OB. So OA and OB तो radius है. Similarly, if this point is C, this point is D, तो OC और OD भी radius है. OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to 2 because all these are radius. And if this point here is P, तो OP is equal to 1 width and OP is perpendicular to AB also. और OP is a line from center perpendicular from center, so it is bisecting AB. AB को bisect करेगा. ठीक है. सो इन ट्रायंगल OAP क्या हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्रायंगल OAP दिस इज 1, OP is 1 and OA is 2. तो OP का डबल है OA. तो क्या तुम्हें ट्रायंगल याद आ रहा है 3690 वाला ट्रायंगल, 3690 ट्रायंगल. If one side is 30 degree,
वन साइड इज 60 डिग्री, वन साइड इज 90 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड, इफ दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड इज रूट 3 यूनिट्स, और 90 के सामने वाला साइड इज डबल दैट ऑफ 30 के सामने वाला साइड, स्मॉलेस्ट साइड, तो दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, 1:√3:2, इजंट इट सो? तो क्लियरली ये 30 60 90 वाला ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, बिकॉज स्मॉलेस्ट साइड राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है दैट इज डबल, स्मॉलेस्ट साइड इज 1, तो अदर साइड विल बी रूट 3, एंड दिस एंगल हियर 1 के सामने वाला एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस एंगल हियर विल बी 60 डिग्री. Okay, so this angle will be 60 and if this angle is 60, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, this angle will be 30, क्योंकि टोटल एंगल 90 होगा. Similarly this angle here, this will be 60 and this angle will be 30. So now we can find out area of triangle OAB, area of triangle OAB, and similarly we will find out area of the sectors OC and ODB, और फिर पूरे सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, ठीक है. सो दिस इज रूट 3, AP is रूट 3, PB is रूट 3, area of triangle OAB will be equal to 1/2 into base which is 2 to 3 which is AB into height which is OP which is 1. So this area is root 3 and area of sectors OCA and sector ODB दोनों का एरिया इक्वल होगा. 30 डिग्री एंगल है तो 30/360 2 टाइम्स ऑफ 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर हमारा 2 पाई इंटू 2 स्क्वायर. सो 8 पाई इंटू 1/12, तो 2 पाई/3 एरिया आ गया. अभी दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है टोटल एरिया में से. सो अवर एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 4 पाई माइनस 2 पाई/3 प्लस रूट 3. So 4 pi minus 2 pi/3 that is equal to 10 pi/3 minus root 3. 10 pi/3 minus root 3 will be the answer. Option D आंसर हो जाएगा. Okay, is this part clear? ठीक है. Next question. If a 6 centimeter cross 6 centimeter square is placed on a triangle, it can cover up to 60% of the triangle. If the triangle is placed on the square, it can cover up to 2/3 of the square. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर के बारे में पता है, स्क्वायर इज अ 6 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ट्रायंगल का डायमेंशंस नहीं पता, कुछ भी नहीं पता ट्रायंगल के बारे में. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम स्क्वायर को प्लेस करें ट्रायंगल के ऊपर, देन इट इज कवरिंग अप 60% ऑफ द ट्रायंगल. इफ यू आर प्लेसिंग ट्रायंगल ऑन द स्क्वायर, इट इज कवरिंग अप 2/3 ऑफ द स्क्वायर. तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल? अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. अगर क्लिक करता है तब तो इमीडिएटली करना है, अदरवाइज फिर ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है. वेदर दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल होगा पता नहीं. ठीक है, बट जो पता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो देयर इज अ स्क्वायर 6/6 and if this square is placed on the triangle, it is covering a 60% of the area of the triangle. रैंडमली कुछ भी फिगर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली कवरिंग अप 60% ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. स्क्वायर इज कवरिंग अप 60% ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अब एक बात बताओ, अब अगर हम स्क्वायर को ट्रायंगल के ऊपर प्लेस करें या ट्रायंगल को स्क्वायर के ऊपर प्लेस करें, जो एरिया कवर्ड होगा वो तो सेम ही होगा. ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमें मैथ में करना क्या होता है, ये तो फाइंड आउट करना था कि क्या चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, जो कि सेम है. सो इन बोथ केसेस एरिया कवर्ड विल बी सेम. ठीक है, सो वी नो आइडिया कि ट्रायंगल कैसा है, बट एरिया कवर्ड विल बी सेम.
तो बस उसी को इक्वेट करना है। फर्स्ट केस में 60% ऑफ द ट्रायंगल इज बीइंग कवर्ड, ओके, तो 60% ऑफ ट्रायंगल इज द एरिया कवर्ड एंड दैट इज सेम एज 2/3 ऑफ द स्क्वायर, एंड स्क्वायर का एरिया हमें पता है दैट इज 6 क्रॉस 6, तो 36 है। सो 60% यानी 3/5 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 2/3 of area of square which is 36, so that is equal to 24, यानी कि area of the triangle is equal to 24 into 5/3, 120/3 which is 40 centimeter square. Option C will be the answer, that area of the triangle is equal to 40 centimeter square. Okay, so हमें ये तो पता नहीं चला कि ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल है या फिर स्केलिन है, कैसा ट्रायंगल है, बट ये तो डेफिनेटली पता है कि डेफिनेटली एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 40 centimeter square as per the given information. Okay, next question. The cost of making a rectangular table is calculated by adding two variables. The first is proportional to the area of the table and other to the square of the length of the longer side. So there are two variables in total for the cost. Cost is basically equal to, first part is proportional to area of the table and second part is proportional to square of the length of the longer side. Okay, so it could be a m into area of the table plus n into square of the length, yani n into l square. This is the cost, ma plus n l square. Okay, for cost of making a rectangular table. अब इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहला हमारा केस बन रहा है, इन मेकिंग 2 मीटर क्रॉस 3 मीटर टेबल इट कॉस्ट रुपीज 5000. तो 2 मीटर क्रॉस 3 मीटर टेबल एरिया विल बी 2 into 3 6, तो m into 6 प्लस लॉन्गर साइड इज 3 meters, सो स्क्वायर ऑफ 3 यानी प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज 5000. एरिया इज इक्वल टू 6 एंड लॉन्गर साइड इज 3, तो 3 स्क्वायर 6m plus 9n दैट इज इक्वल टू 5000. सेकंड इक्वेशन बनेगा, दूसरी हम जो टेबल बना रहे हैं दैट इज 1.5 into 4, एरिया आ जाएगा 6 अगेन, तो 6m प्लस लॉन्गर साइड इज 4, तो 4 स्क्वायर 16 एंड दिस इज इक्वल टू 6400. तो 6m तो दोनों ही केसेस में सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेकंड -1 माइनस फर्स्ट 16 एंड माइनस 9n, क्योंकि m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7n इज इक्वल टू 1400, n इज इक्वल टू 200. इफ n इज इक्वल टू 200 तो 9n, आप पहली इक्वेशन पुट करते हैं, 9n विल बी इक्वल टू 1800, तो 6m विल बी इक्वल टू 3200. सो m इंटीजर में तो नहीं आएगा वैल्यू, 3200 बाई 6 आ जाएगा. देन हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ 2.5 मीटर क्रॉस 2.5 मीटर टेबल नियरेस्ट टू द रूपी. The cost for this will be equal to, area is 6.25 meter square, तो 6.25 times m प्लस बोथ साइड्स आर इक्वल, तो लॉन्गर साइड भी हमारा 2.5 होगा, 2.5 स्क्वायर्ड दैट इज 6.25 m, 6.25 टाइम्स m प्लस 6.25 टाइम्स m. ओके, तो 6.5 बेसिकली हुआ हमारा 25/4, 25/4 कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट इज m प्लस n, तो 25/4 टाइम्स m आया 3200/6, n इज 200, तो 3200 प्लस 200 4400/6 या 2200/3, 25/4 इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 3. ओके, सो क्या आंसर आ जाएगा? अब 2200/3 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 700 एंड 100/3, 700 प्लस 100/3, ताकि अप्रॉक्सीमेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो. तो 700 इंटू 25/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 17,500/4 प्लस 2500/12, 17,500/4 प्लस 2500/12, ये क्या वैल्यू आएगा? 17,500/4, दैट इज 8750/2, सो 4
4375, 4375, and second value 2500 by 12, so that is 208.33. 4375 प्लस 208.33 यानी कि 4583. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. Okay, 4583 will be the lump sum amount, approximate value. Option B will be the answer. क्लियर है बात? ठीक है, या फिर दोनों को सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, n इज इक्वल टू 100. तो 6.25 n विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 200, तो 1250. और 6.25 m, दैट m है 3200 बाई 6, यानी 1600 बाई 3, या फिर 6.25 है, 6m तो 3200 आया ही था, तो 3200 प्लस 6m तो पता ही था. अब 0.25m क्या होगा, क्योंकि m हमारा 3200 बाई 6 या फिर 1600 बाई 3, तो 1600 बाई 12, तो 1250 प्लस 3200 और प्लस 1250 और प्लस 1600 बाई 12 क्या है, दिस इज 100 एंड 100 तो आ ही गया, और फिर बाकी बचा हमारा 400 बाई 12 या 100 बाई 3, तो 133.33. दिस इज 4583.33. सेपरेटली कैलकुलेट करते तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहती. ओके, क्लियर है? सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, एंड आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. यस, सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी मैंने डिस्कस की वो सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी. एंड अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.